Hello dear students of class 12. This video lecture is on mixed grouping of resistive circuit. Dear students, we have discussed in detail mixed grouping of capacitive circuit. मीन्स ऐसा सर्किट जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स कुछ सीरीज में हैं कुछ पैरेलल में, उसे मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं. Similarly here also such type of resistive circuit in which resistors are connected, some are in series and some are in parallel, known as mixed grouping. वहाँ पे हमने आपको बहुत तरह के मिक्स्ड ग्रुपिंग बताई थी, बहुत से मेथड्स बताए थे नेट रेजिस्टेंस निकालने के, नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए. Similarly here also so many methods we will use to find the net resistance. Method is same. There if we have a mixed grouping in which some capacitors are parallel, how we detect it. Here also if we have some mixed grouping resistive circuit in which some resistors are fake, how we detect it. Finite ladder problem of capacitive circuit, similarly finite ladder problem of resistive circuit. Infinite ladder problem of capacitive circuit, similarly infinite ladder problem of resistive circuit, and so on. All those steps which we have done there, same steps we have to do here. There also we said that if we are not able to understand which resistors are in series, which capacitors are in series and which capacitors are in parallel, we go for Kirchhoff's law. Here also we can say that if we have a complicated resistive circuit in which we are not able to understand which one is in series and which one is in parallel, we will go for Kirchhoff's law. So this topic starts from Kirchhoff's law of resistive circuit. Kirchhoff's law of resistive circuit. As there Kirchhoff suggested two laws, similarly here also there are two laws. First is junction law and second is loop law. Junction law is based on law of conservation of charge. And loop law is based on law of conservation of energy. First law ये कहता है at any junction if so many wires are present in which currents are flowing in different direction, then total incoming current will be equal to total outgoing current. किसी जंक्शन पे बहुत सारे वायर्स हों जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट. नाउ वो करंट जो इनकमिंग है दे विल बी टेकन विथ पॉजिटिव साइन, जो आउटगोइंग है दे विल बी टेकन विथ नेगेटिव साइन. Then also we can say that at a junction algebraic sum of all the current should be zero. या तो बोलिए कि total incoming current will be equal to total outgoing current, या आप कहिए algebraic sum of current meeting at a point should be zero. जितनी भी currents एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं उसका algebraic sum जीरो होगा. एल्जेब्रिक सम करते समय वो करंट जो टुवर्ड जंक्शन चल रही हैं इफ दे आर टेकन विद पॉजिटिव साइन, तो वो करंट जो अवे फ्रॉम जंक्शन जाएगी दे विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन. I1 I2 विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन, I3 विल बी टेकन विद पॉजिटिव साइन, I4 विल बी टेकन विद पॉजिटिव साइन, I5 विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन, I6 विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन, I7 विल बी टेकन विद पॉजिटिव साइन. This is the meaning of algebraic sum of current. It must be equal to zero because charge always remains conserved. It can neither be created nor be destroyed. So I4 plus I3 plus I7 is equal to I1 plus I2 plus I5 plus I6. ये क्या है? ये टोटल इनकमिंग करंट है. टोटल इनकमिंग करंट. ये क्या है? टोटल आउटगोइंग करंट. दिस इज द मीनिंग ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ इन रेजिस्टिव सर्किट. टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट और algebraic sum of current meeting at a point is zero.
Then Kirchhoff's loop law, there also same statement. In a closed loop, in a closed mesh, sum of potential drop across each element will be equal to 0. यही आपको मैंने वहाँ बताया था. In a closed loop or in a closed mesh, sum of potential drop across all the elements should be equal to 0. This is the statement of second law, Kirchhoff's second law. What? In a closed loop or mesh, sum of potential drop across each element will be 0. ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है. अब किरचॉफ्स लॉ हम अप्लाई कहाँ करते हैं? सबसे आसान वही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को निकालते हैं. एग्जाम में आपके आता भी है कि अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू फाइंड द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर रेजिस्टिव सर्किट. देयर आई टोल्ड यू फॉर कैपेसिटिव सर्किट, हियर आई एम गोइंग टू डू फॉर रेजिस्टिव सर्किट. आप जानते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें 5 रजिस्टर या 5 कैपेसिटर्स लगे हों, इस तरह से कि 4 रिप्रेजेंट साइड्स एंड 1 रिप्रेजेंट्स डायगोनल, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डिजाइनिंग व्हीटस्टोन ने किया था. Combination of 5 resistors और 5 capacitors if connected in this way known as व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. ये ब्रिज बैलेंस होता है, व्हीटस्टोन ने कहा था जब, तो C और D के पोटेंशियल्स आपस में बराबर होते हैं एट बैलेंसिंग सिचुएशन. VC इज इक्वल टू VD. इसलिए C से D की तरफ या D से C की तरफ करंट का फ्लो नहीं होता. अगर हम सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज को लेते हैं तो वो ऐसा हमें पता नहीं है बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है. हम जानना चाहते हैं कि इस ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या है. अंडर व्हाट कंडीशन VC विल बी इक्वल टू VD. हमने इस अपने सर्किट को अक्रॉस सेल लगा दिया. कैपेसिटिव सर्किट में सेल लगाते ही सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव चार्ज निकलता था तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकलता था. लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं एज्यूम करते. यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है उतनी करंट को नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँचना ही होगा. ये करंट I निकल कर यहाँ पहुँची. यहाँ पहुँचने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई. अगर I1 पार्ट ऊपर चला गया तो यहाँ जाएगा I माइनस I1 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ. सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू इनकमिंग करंट. इनकमिंग करंट अगर I है तो आउटगोइंग करंट का सम भी I होना चाहिए. ये I1 यहाँ पहुँची, I2 पार्ट यहाँ चला गया तो इसमें जाएगा I1 माइनस I2. अगेन हियर वी हैव अप्लाइड किरचॉफ फर्स्ट लॉ. इनकमिंग करंट I1 है तो आउटगोइंग करंट का सम भी I1 होना चाहिए. इस पॉइंट पर इधर से I2 आ रही है, इधर से I माइनस I1 आ रही है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो मिलेगा I माइनस I1 प्लस I2, वो इसमें चली जाएगी. यहाँ पर इधर से I माइनस I1 प्लस I2 पहुँची, यहाँ से I1 माइनस I2 पहुँची. ऐड कीजिए I1 I2 कैंसिल हो गया, I बचा वो I इधर चली गई. दिस इज हाउ वी अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ इन रजिस्टिव सर्किट. अब इसके बाद हमारे पास 2 लूप हम लेते हैं ACDA. कैसे लिखते थे वोल्टेज इक्वेशन? VA माइनस VA इज इक्वल टू VA माइनस VC I1 R1 प्लस VC माइनस VD I2 R5 प्लस VD माइनस VA. A से D की तरफ I माइनस I1 करेंट, सो D से A की तरफ माइनस टाइम्स I माइनस I1 करेंट, माइनस टाइम्स I माइनस I1 इंटू R2. दूसरा लूप हमने ले लिया CBDC. VC माइनस VC इज इक्वल टू VC माइनस VB I1 माइनस I2 इंटू R3 प्लस VB माइनस VD. D से B की तरफ इतनी करंट तो B से D की तरफ माइनस करंट,
तो माइनस टाइम्स आई माइनस I1 प्लस I2 इंटू R4 प्लस VD माइनस VC, VD माइनस VC, D से C, C से D की तरफ I2 करंट, सो D से C की तरफ माइनस I2 करंट, R5। ये दो इक्वेशंस हमको मिले। हमने नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज लिया और उसमें हमने एक सेल लगाने के बाद किरचॉफ लॉ अप्लाई किए। अब इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन VC VD के बराबर होगा, और VC अगर VD के बराबर है तो अगर दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स आपस में बराबर हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। और ये बार बार कहा जाता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, मीन्स I2 की वैल्यू हमको जीरो लेनी पड़ेगी। I2 बराबर जीरो आप 1 और 2 में डाल दीजिए तो आपका इक्वेशन 1 बचेगा, I1 R1 ये जीरो हो जाएगा पूरा, माइनस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू जीरो, या आप लिख सकते हो I1 R1 इज इक्वल टू I1 इंटू R2, इक्वेशन नंबर 3। और I2 बराबर जीरो इसमें प्लेस कीजिए तो I1 R3 माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, I2 जीरो हो जाएगा, या I1 R3 इज इक्वल टू I1 इंटू R4। अब अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा R1 बाई R3 और राइट साइड में आपको मिलेगा R2 बाई R4। इसका मतलब R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। मीन्स जब हमारा आर्म रेशियो आइदर साइड ऑफ डायगोनल, डायगोनल के लेफ्ट साइड आर्म रेशियो और राइट साइड आर्म रेशियो बराबर होगा तो हमारा ब्रिज बैलेंस होगा, हमारे डायगोनल ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, पोटेंशियल C का और पोटेंशियल D का आपस में बराबर हो जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर रेजिस्टिव सर्किट। सेम वी हैव डन फॉर कैपेसिटिव सर्किट, so I don't think that there will be problem in finding the balancing condition. Now सारे मैंने आपसे कहा न्यूमेरिकल्स उसी तरह से करने ही जैसे वहाँ किया था, डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक स्पेशल सर्किट बता रहा हूँ जिसका बोर्ड एग्ज़ाम से तो कोई रिलेशन नहीं है, इतना स्पेशल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर 12 यू हैव टू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। CR सर्किट, CR सर्किट, CR सर्किट का मतलब सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ। हमने सेकेंड चैप्टर में एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़े थे जिसमें कैपेसिटर्स लगे थे। थर्ड चैप्टर में हम रेजिस्टिव सर्किट पढ़े जिसमें रजिस्टर्स लगे हैं। कैसे प्योर कैपेसिटिव सर्किट को टैकल करते हैं वी डिस्कस इन डिटेल इन सेकेंड यूनिट। कैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट को डिस्कस करते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जस्ट नाउ। अब दोनों लगे हों तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही बता पाऊंगा, और एग्जाम्पल बताते समय इस जो पॉइंट बताऊंगा उसको आप माइंड में रखिएगा। वो पॉइंट्स आप हमेशा CR सर्किट में अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन से चल रहा हूँ। आपको एक ऐसा सर्किट दिया गया जिसमें रजिस्टर्स भी लगे हैं, जिसमें कैपेसिटर्स भी लगे हैं, जिसमें सेल लगा हुआ है। लेट रजिस्टर्स वैल्यूज 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम है, सेल 10 वोल्ट का है, कैपेसिटिव वैल्यू इसकी 2 है, इसकी 4 है, माइक्रोफराड। तो इस सर्किट को CR सर्किट बोलेंगे क्योंकि इसमें कैपेसिटर्स भी लगे हैं, रजिस्टर्स भी लगे हैं। अब आपसे पूछा जाता है मोस्टली CR सर्किट्स में कि बताइए जो कैपेसिटर्स लगे हैं इनके पास चार्ज कितना कितना है।
पहले कैपेसिटर में चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर क्या होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर्स क्या हैं, सर्किट में कितनी करंट चल रही है, और एम और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ये है कि हमने आपको बार बार कहा है कि कैपेसिटर्स डायरेक्ट सिग्नल में के साथ में केवल तब तक ही एक्टिव होते हैं जब तक करंट ट्रांजिट टाइम में है, मीन जब तक करंट मिनिमम से मैक्सिमम हो रही है तब तक ही कैपेसिटर्स एक्टिव हैं। जैसे करंट ने अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया, कैपेसिटर्स जिस ब्रांच में लगे होते हैं उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि कैपेसिटर्स डायरेक्ट सिग्नल को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं व्हेन करंट एक्वायर्स इट्स पीक वैल्यू। लेकिन जब तक करंट ने पीक वैल्यू को अचीव नहीं किया था तब तक उस ब्रांच में भी करंट फ्लो करेगी, मीन चार्ज फ्लो करेगा जिस ब्रांच में कैपेसिटर्स लगे हैं। तो जब हम ट्रांजिट टाइम में हैं, उस मोमेंट पर इस सेल के डिस्चार्ज होने की वजह से कैपेसिटर्स हमारे चार्ज हो जाएंगे, और ये क्लियर है कि कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हो चाहे ना हो, सीरीज में लगे हैं तो सबके क्रॉस चार्ज सेम होगा। अब जब करंट ने अपने पीक वैल्यू को अचीव कर लिया, उसके बाद इस पोर्शन में चार्ज या करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस पोर्शन में कैपेसिटर्स लगे हैं और उन्होंने करंट के फ्लो में इनफाइनाइट हिंड्रेंस प्रोवाइड किया। लेकिन सेल से निकल के करंट इस पोर्शन में तो जाएगी, अब करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो ये बेसिक सबसे बड़ा है कि सीआर सर्किट्स में जब को हम कभी डीसी सोर्स से लगाते हैं तो कैपेसिटर चार्ज तो हो जाते हैं, क्योंकि डीसी सोर्स को ऑन करते ही कुछ समय तक ट्रांजिट टाइम होता है, उस ट्रांजिट टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज हो जाने के बाद उस ब्रांच में करंट या चार्ज फ्लो नहीं कर सकता जिस ब्रांच में कैपेसिटर्स लगे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट हिंड्रेंस वो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट सिग्नल को। तो वही मैंने किया है। देखिए, अब अगर आप इस पर्टिकुलर लूप को देखें तो जो करंट चल रही है वो करंट यहाँ पे हिंड्रेंस फेस कर रही है 5 ओम का, यहाँ पे 3 ओम का, यहाँ पे 2 ओम का, तो टोटल हिंड्रेंस करंट फेस कर रही है 10 ओम। सप्लाई वोल्टेज है 10, तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 10/10 दैट इज़ 1 एम्पियर। हमने बहुत आसानी से निकाल लिया कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब चूंकि यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सेल को आइडियल मान रहे हैं। अब हमने इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट तो निकाल ली, कितनी करंट मूव करेगी। अब हमको बताना है कि कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा और Vm माइनस Vn क्या होगा। तो ज़रा इस प्लेस पर आप आइए। अगर इसका नाम हम A लिख लें, इसका नाम हम B लिख लें, इसका नाम C लिख लें, इसका नाम D लिख लें, इसका नाम E लिख लें, तो अगर ये सेल 10 वोल्ट का है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए दोनों एंड्स के पोटेंशियल सेम होते हैं। सेम लॉजिक से इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा। सेम लॉजिक से इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दीज टू आर इन पैरेलल? यस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे VE माइनस VD should be equal to VA minus VC because both are in parallel. Now VE minus VD को हम लिख सकते हैं VE minus VM plus VM minus VD, और VA minus VC को लिख सकते हैं VA minus VB प्लस VB माइनस VN प्लस VN माइनस VC। नाउ VE माइनस VM, E की साइड में प्रेजेंट प्लेट पे चार्ज है प्लस Q, तो VE माइनस VM होगा Q/2।
Vm माइनस वी होगा Q/4, Vm माइनस वी होगा 5 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 1। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। 2Q यहाँ आएगा, Q यहाँ आएगा, सीधे 3Q/4 इज इक्वल टू 10, implies that Q इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोकूलम। तो आपको पता चल गया कि कैपेसिटर्स पे कितना कितना चार्ज होगा। इतना चार्ज इस पर पॉजिटिव नेचर का होगा, इस पर निगेटिव नेचर का, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। ये सेकंड पहला पार्ट था कि दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा। अब ये कह रहे हैं कि Vm माइनस Vn बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, Vm माइनस Vn को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? M से N की तरफ आप किसी भी पाथ से चलो, हमको Vm माइनस Vn चाहे इस पाथ को चूज करो और चाहे इस पाथ को चूज करो। चल हम इस पाथ से चलते हैं। तो अगर हम Vm माइनस Vn को लिखना चाहें इस पाथ से तो क्या लिखेंगे? Vm माइनस Vd प्लस Vd माइनस Vc प्लस Vc माइनस Vn। आप ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए राइट साइड का। माइनस Vc से प्लस Vc कैंसिल हुआ, माइनस Vd से प्लस Vd कैंसिल हुआ, बचा Vn माइनस Cn केवल। नाउ Vm माइनस Vd क्या होगा? Q/4। Vd माइनस Vc क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। और Vc माइनस Vn होगा C से O की तरफ I करंट, सो O से C की तरफ, या इससे N से C की तरफ I करंट, सो C से N की तरफ माइनस I करंट। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2I। Q की वैल्यू आपने निकाली है 40/3 और I की वैल्यू आपने निकाली है 1। तो 10/3 माइनस 2 दैट इज 4/3 वोल्ट। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N। तो इस तरह से हम CR सर्किट को टैकल करते हैं। हम CR सर्किट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने कर रहे हैं। जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके सामने तो आप उसको कर पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव पेपर को देखें तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे जिसमें कैपेसिटर रजिस्टर दोनों लगे, जिसमें आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। सी वन मोर क्वेश्चन। इस तरह ये क्वेश्चन आपको दिया गया जिसमें रजिस्टर्स भी लगे हैं, कैपेसिटर्स भी लगे हैं, सेल्स भी लगे हैं और सेल्स एक से ज़्यादा लगा दिए। 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ये सेल मान लीजिए 10 वोल्ट का है, ये सेल मान लीजिए 6 वोल्ट का है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट F, पॉइंट G, H, J। आपसे कहा गया कि बताइए 10 वोल्ट वाला सेल कितनी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। बताइए 6 वोल्ट वाला सेल कितनी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। बताइए कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है। बताइए कैपेसिटर के क्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। बताइए B और G के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बताइए C और F के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो हमको फिर वही बेसिक पे चलना है जो बेसिक मैंने भी आपको बताई थी कि ट्रांजिट टाइम में स्विच ऑन करने पे ट्रांजिट टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और जैसे ट्रांजिट टाइम ख़त्म होता है वैसे उस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करती जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है।
तो यहाँ से जब करंट निकलेगी तो ट्रांजिट टाइम में ये कैपेसिटर चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ट्रांजिट टाइम ख़त्म होगा इस ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं होगा। पहली बात, लेट यहाँ से I2 करंट निकल रही है और यहाँ से I1 करंट निकल रही है, तो अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I2 निकली तो निगेटिव पर I2 को पहुँचना ही होगा, अभी मैंने बताया था। और इसके पॉजिटिव से अगर I1 निकली तो निगेटिव पर I1 को पहुँचना ही होगा। अब ये I2 यहाँ पहुँच के इधर जा नहीं सकती, क्योंकि इस ब्रांच में जो कैपेसिटर लगा है वो इनफाइनाइट हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए I2 इधर घूम जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ से I1 यहाँ पहुँची, इस पॉइंट पर इधर से I2 आ रही, इधर से I1 आ रही है, तो टोटल इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 हो गई, तो टोटल आउटगोइंग करंट भी I1 प्लस I2 होगी। अब ये I1 प्लस I2 यहाँ पहुँची, इधर चली गई I2, तो I1 प्लस I2 में से अगर इधर I2 चलेगी तो इधर कितनी बचेगी I1। वो I1 यहाँ पहुँचेगी, इधर चली आएगी। इधर क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर इनफाइनाइट हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया उन्हीं दो बेसिक पॉइंट्स को लेते हुए, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने देखा कि I1 और I2 दो अननोन्स हैं, तो हमको दो लूप इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। एक हम इक्वेशन चल लूप लेते हैं A B D E F J A, A B D E F J A, VA माइनस VA इज इक्वल टू VA माइनस VB मीन्स 2I1 प्लस VB माइनस VD मीन्स थ्राइस ऑफ I1 प्लस I2 प्लस VD माइनस VE 6I1 प्लस VE माइनस VF 4I1 प्लस VF माइनस VJ 3I1 प्लस VJ माइनस VA माइनस 10, क्योंकि J का पोटेंशियल 0 है, A का पोटेंशियल 10 है, तो VJ माइनस VA होगा 0 माइनस 10 मीन्स माइनस 10। सिंप्लीफाई करके आपको I1 I2 में इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा लूप कोई भी ले सकते हैं, चलिए हम ले रहे हैं B C J D B, B C G D B, VB माइनस VB इज इक्वल टू VB माइनस VC माइनस I2, VC माइनस VG माइनस 2I2, VG माइनस VD, G का पोटेंशियल 6 है, D का पोटेंशियल 0 है, तो VG माइनस VD होगा प्लस 6, VD माइनस VB माइनस 3 टाइम्स I1 प्लस I2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, I1 I2 में इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब आपको दो इक्वेशन I1 I2 में मिल जाएंगे तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट I1 और I2। I1 क्या है? करंट प्रोड्यूस बाय 10 वोल्ट सेल। I2 क्या है? करंट प्रोड्यूस बाय 6 वोल्ट सेल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि I1 I2 दोनों पॉजिटिव आए, ऐसा भी हो सकता है कि I1 I2 में से एक निगेटिव आए। दोनों निगेटिव नहीं आ सकते। निगेटिव का मतलब होता है करंट निकल नहीं रही है बल्कि आ रही है, तो दोनों निगेटिव होने का मतलब है कि ये भी करंट ले रहा है, ये भी करंट ले रहा है, तो क्वेश्चन साहब करंट दे कौन रहा है? तो दोनों निगेटिव तो नहीं होंगे, कोई एक निगेटिव हो सकता है। मान लीजिए अगर I1 निगेटिव आता है, इसका मतलब ये सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है बल्कि चार्ज हो रहा है। या अगर I2 निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है बल्कि चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो मतलब दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि कौन चार्ज है कौन। कभी एग्जाम में पूछा गया था विच सेल इज इन चार्जिंग मोड, विच सेल इन डिस्चार्जिंग मोड, तो कीप इट क्लियर। इफ बोथ द करेंट्स आर कमिंग विद पॉजिटिव साइन, सेल आर डिस्चार्जिंग। इफ एनी करंट इज कमिंग विद नेगेटिव साइन, इट मीन दैट सेल इज चार्जिंग। जब I1 I2 मिल जाएगा तो आपका ये पार्ट हो गया। आप कह रहे हैं कि बताइए चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, इसके लिए देखिए आप VG माइनस VE, हमको I1 I2 की वैल्यूज मिल गई हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। लेट I1 की वैल्यू आती है x और I2 की वैल्यू आती है y। सपोज कर लिया हमने कोई नंबर है x y। अब हमसे कहा गया कि बताइए इस पर चार्ज कितना है। तो देखिए
G से E की तरफ जाने के दो रास्ते, एक इस रास्ते से चल सकते हैं, एक इस रास्ते से चल सकते हैं। तो अगर हम Vg माइनस VE की वैल्यू लिखें इस रास्ते से तो आपको क्या मिलेगा, Q/2, बिकॉज Vg माइनस VE होगा Vg माइनस VH प्लस VH माइनस VE, और Vg माइनस VH होगा Q/2। H और E के बीच में रजिस्टर तो लगा है लेकिन करंट नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। और नीचे वाले रास्ते से Vg माइनस VE क्या लिखेंगे, Vg माइनस VD जो कि 6 है, प्लस VD माइनस VE जो है 6i1। नाउ सिंस i1 की वैल्यू हमको पता है, कोई नंबर था पुट कर देंगे, Q निकल आएगा। ये हमको बता देगा कि हमारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। जब कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर होता है ½Q²/C। इस पे चार्ज आप जानते हैं, उसकी कैपेसिटी आपको दी हुई है, आप एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकते हैं। फिर आपसे कहा गया VB माइनस VG बताइए क्या होगा। तो B से G की तरफ आप चलिए, किसी पाथ से, कोई भी पाथ ले सकते हो आप। B से G की तरफ VB माइनस VG, G ये है, चाहे ऐसे चलो और चाहे ऐसे चलो, कोई भी आप चूज कर सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। चलिए हम ऊपर से चल रहे हैं, तो VB माइनस VG को हम लिखेंगे VB माइनस VC प्लस VC माइनस VG। VB माइनस VC की वैल्यू होगी -I2 और VC माइनस VG की वैल्यू होगी -2I2, मीन्स -3I2। I2 वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट कर दीजिएगा तो आपको VB माइनस VG की वैल्यू मिल जाएगी। फिर कह रहे हैं VC माइनस VF निकालिए, C से F की तरफ किसी पाथ से चलो। VC माइनस VF कोई भी आप पाथ चूज कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे भागो, चाहे आप ऐसे चल के आओ, चाहे ऐसे चल के आओ और चाहे ऐसे आओ, कोई भी पाथ आप चूज कर सकते हैं। तो VC माइनस VF इज इक्वल टू VC माइनस VB प्लस VB माइनस VA प्लस VA माइनस VJ प्लस VJ माइनस VF। हमने इस पाथ को चूज किया। VC माइनस VB की वैल्यू होगी I2, VB माइनस VA होगा -2I1, VA माइनस VJ होगा +10 और VJ माइनस VF होगा -3I1। आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल चुके हो, इक्वेशन को सॉल्व करके पुट कर दीजिएगा तो आपको VC माइनस VF की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज हाउ वी डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन CR सर्किट। बोर्ड एग्ज़ाम में तो 1-2 बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, जिसमें आपको कैपेसिटिव सर्किट और रजिस्टिव सर्किट दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ पाए हैं तो आप अपने कमेंट कीजिए, अपने और फ्रेंड से बोलिए सब्सक्राइब करने को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।